coordinates of the points which divides the join of minus 1 7 and 4 minus 3 in the ratio of 2:3. See here we have to use the section formula, and already I have told you how to use the section formula and how to remember the section formula. Let me repeat it once again. Suppose if this is the point, suppose this is the point A x1 y1, this is B x2 y2, there is a point P xy which divides it in the ratio of m1 and m2. Then if you remember, what I told you is Pxy is equal to, I told you very clearly, m1 plus m2 we have to write in the denominator, m1 plus m2 we have to write in the denominator. Here also we have to write m1 plus m2. Then this will be equal to m1 x2 plus m2 x1 and m1 y2 plus m2 y1. So children, this is what I already told you. Now let us see how we can use it in the context of this problem. In this problem, what he says, there are 2 points. This point is minus 1 and 7, and here this point is 4 and minus 3, and it is divided in the ratio of what? 2:3. 2:3. So children, if you try to equate it, the first method is what? Write the formula and put the values. So what I'll do here is, the value of m1 is 2, the value of x1 is minus 1, value of y1 is 7, value of m2 is 3, value of x2 is 4, value of y2 is minus 3. So one method is what? To put the values. So Pxy is equal to, I will put the values here. I will put the values here. Let us see how we can put the values. See, m1 is 2, so wherever you find m1, you have to put 2. Here m1 is there, so I am putting 2. Here again m1 x2 is 4, so I am putting x2 as 4. Then m2 is 3, so I am putting m2 as 3. Then x1 is minus 1. And m1 plus m2 means what? 2 plus 3. Now this is what? m1 y2. Wherever m1 is there, you put 2. m1 is there, you put 2. y2 is there, you put minus 3. Wherever m2 is there, you put 3. And wherever y1 is there, you put 7. Divided by 2 plus 3. So what I did, children, I have put the values here. m1 is 2, I have put here. x2 is 4, I have put the value here. m2 is 3, I am putting it here. x1 is minus 1, okay. m1 plus m2, 2 plus 3. Again m1 is 2, I am putting here. y2 is minus 3, I have put here. Then m2 is 3, and then y1 is 7. So that value I am putting. And then after that, what I'll do is, I'll simplify it. 2 multiplied by 4 is 8. 2 multiplied by 4 is 8. Plus of plus is plus, plus of minus is minus. So 3. And 2 plus 3 is 5. Plus of minus is minus. 2 multiplied by 3 is 6. 3 multiplied by 7 is 21. And 2 plus 3 is 5. So children, if I simplify it further,
then this will be equal to 8 minus 3 is 5, 5 divided by 5 is 1, minus 6 plus 21 is 15, and divided by 5 is, again we have to write. So finally what answer we are going to get is, this is 1 and this is 3. So children, what does it mean? It means that if the point A minus 1 7 and B 4 minus 2 4 minus 3 is divided in the ratio of 2:3, then the point will be 1 and 3. At this point this ratio is possible. अगर A minus 1 7 B 4 minus 3 को 2:3 रेशियो में डिवाइड करना है तो वो तभी संभव हो सकता है जब P का पोजीशन 1 और 3 होगा। तो ये होता है इसका मतलब। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब दिस इज वन मेथड. इन दिस मेथड व्हाट आई हैव डन इज आई हैव रिटन द फॉर्मूला, आई हैव पुट द वैल्यूज. नाउ इन द सेकंड मेथड व्हाट वी हैव टू डू इज find the coordinates of the points of trisection of the line segment joining 4 minus 1 and minus 2 3. यानी ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 सेक्शन. 3 सेक्शन का मतलब क्या हो सकता है? कुछ बच्चे यहाँ गलती क्या करते हैं, ट्राइसेक्शन का मतलब क्या करते हैं, 3 इक्वल सेक्शंस लेते हैं. 3 इक्वल सेक्शंस नहीं लेना है आपको. एक सेक्शन हो सकता है, 2 सेक्शन इधर हो सकता है, या 2 सेक्शन इधर हो सकता है, 1 सेक्शन इधर हो सकता है. तो मान लीजिए ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट है 4 minus 1, एक पॉइंट है यहाँ पर A 4 और -1, दूसरा पॉइंट है यहाँ पर -2 और -3. इसको हम कहेंगे B पॉइंट. अब P x y हम ऐसे लेंगे ताकि यहाँ का पॉइंट 2 हो और यहाँ का पोर्शन 1 हो. ये बोलते हैं इसको ट्राइसेक्शन. यानी एक पॉसिबिलिटी है, लेट P x y डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो ऑफ 2:1. P x y ए बी को 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है. एक पॉसिबिलिटी ये हो सकता है. दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, P x y यहाँ होगा और 1:2 रेशियो में डिवाइड करेगा. सो दैट इज सेकंड पॉसिबिलिटी. तो मैं फर्स्ट पॉसिबिलिटी के ऊपर वर्कआउट कर रहा हूँ कि इन द फर्स्ट पॉसिबिलिटी व्हाट आई से इज लेट P x y डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो ऑफ 2:1. अगर ऐसी बात होती है तो क्या होगा, यहाँ आई राइट हियर लेट P x y डिवाइड्स the points, divide the points AB in the ratio of 2:1. अब लास्ट टाइम जो प्रॉब्लम मैंने किया था वहां पर मैंने आपको क्या बताया था कि फॉर्मूला लिखा था. तो यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लिखना है क्या सर? यस, फॉर्मूला आपको लिखना तो कंपलसरी पड़ेगा, बिकॉज मार्क्स आपको एग्जाम में मिलने वाला है. जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर फॉर्मूला तो लिख दूंगा, P x y इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, फिर m1 y2 प्लस m2 y1 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. फॉर्मूला तो कंपलसरी आपको लिखना पड़ेगा. यू हैव टू, यू मस्ट एंड शुड राइट द फॉर्मूला, बिकॉज फॉर दिस यू विल बी गेटिंग सम मार्क्स. बट इस्तेमाल करना है कि नहीं, मैं तो नहीं करूँगा. आप बोलोगे सर फॉर्मूला लिखोगे और इस्तेमाल नहीं करोगे, ये कैसे संभव है? ये संभव है. देखिए मैं बताता हूँ आपको कैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ. फॉलो व्हाट आई से. देखिए मैं कैसे करता हूँ. जस्ट सी द स्टेप्स. कितना सिस्टमेटिक आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कि इस तरह से आप करोगे तो आपको फॉर्मूला याद रखने की आवश्यकता
नहीं पड़ेगी। तो यहाँ एक बात तो m1 है, दिस प्लस दिस तो आपको लिखना ही पड़ेगा डिनोमिनेटर में, यानी 2 + 1 तो आपको लिखना है कंपलसरी, 2 + 1 तो कंपलसरी आपको लिखना है। और जब इंटू करना है तो मैंने आपको बताया था इसको आप यहाँ इंटू करोगे, यानी 2 टाइम्स ऑफ -2, 2 टाइम्स ऑफ -2, 1 टाइम ऑफ 4, 1 × 4। नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे, इस तरह से इंटू करोगे, 2 टाइम्स ऑफ -3 और 1 टाइम ऑफ -1। तो instead of writing the formula and putting the values, I am using this technique to solve the problem. अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको जो सोल्यूशन मिलेगा वो ऐसे होगा। अब देखिए ध्यान से थोड़ा, प्लस ऑफ माइनस तो माइनस होगा, तो ये होगा -4, प्लस ऑफ प्लस प्लस है, प्लस ऑफ प्लस प्लस है, तो ये होगा 4 डिवाइडेड बाय 3, -4 + 4। फिर यहाँ पर होगा प्लस ऑफ माइनस माइनस है, प्लस ऑफ प्लस प्लस है, प्लस ऑफ माइनस माइनस है, 2 + 1 होगा 3। ओके, तो व्हाट डिड आई डू? अगर सर हम वैल्यू डाल के देखते हैं तो क्या होगा, चेक करते हैं, तो करके देख सकते हो आप। देखिए पॉइंट्स आपको दिया है 4 - 1 -2 -3, रेशियो आपने 2:1 लिया, तो अब देखिए m1 की वैल्यू है 2, आप चेक कर सकते हो इफ़ यू वांट। m1 की वैल्यू है 2, x2 की वैल्यू है -2, वही तो मैंने किया। फिर m2 की वैल्यू है 1 और x1 की वैल्यू है 4, यस वही तो मैंने किया। m1 इज 2, y2 इज -3, दैट्स व्हाट आई हैव डन। देन अगेन m2 इज 1, y1 is -1, 2 + 1. So I think that instead of remembering the formula, that is the easy way. Now it's up to you to decide. मैं आप पे छोड़ देता हूँ कि आप इसको कैसे याद रखना चाहते हो, याद रख के लिखना चाहते हो या मेरा टेक्निक यूज़ करना चाहते हो। तो -4 + 4 0 होगा बच्चों, 0 डिवाइडेड बाय 3, और -6 - 1 होगा -7 बाय 3। सो 0 डिवाइडेड बाय 3 होता है 0 और ये -7 बाय 3। तो ये एक पॉसिबिलिटी था जब हमने इसको डिवाइड किया 2:1 रेशियो में। अब 1:2 रेशियो में भी डिवाइड हो सकता है, तो 1:2 रेशियो में अगर डिवाइड होगा तो क्या होगा, लेट अस सी। यही प्रॉब्लम है, यही पॉइंट्स है, ये पॉइंट है A 4 - 1, ये पॉइंट है B -2 -3, बट दिस पॉइंट इज चेंजिंग दिस टाइम, PXY चेंज हो रहा है। इस बार ये 1 है तो ये 2 है। द रेशियो इंस्टेड ऑफ 2:1 इट इज 1:2। ट्राई सेक्शन, ट्राई का मतलब होता है 3 सेक्शन, तो 3 सेक्शन में संभव क्या है, 3 बराबर सेक्शन नहीं कहा है उन्होंने, ट्राई सेक्टेड नहीं कहा है, ट्राई सेक्शन कहा है, इक्वली ट्राई सेक्टेड नहीं है। ट्राई सेक्शन होने की वजह से फर्स्ट पार्ट इज 2, सेकंड पार्ट इज 1, फर्स्ट पार्ट इज 1, सेकंड पार्ट इज 2। तो नाउ अगेन वही आपको लिखना पड़ेगा कि लेट PXY डिवाइड्स द पॉइंट AB इन द रेशियो ऑफ 1:2। लेट PXY divides the point AB in the ratio of 1:2। तो अब आप देखो कि इसको मैं कितना आसानी से आपको विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला या विदाउट राइटिंग द फॉर्मूला आपको मैं बताने की कोशिश यहाँ पर करूँगा। तो दिस विल बी, फिर अगेन यहाँ y कोऑर्डिनेट आपको लिखना पड़ेगा डिनोमिनेटर में, y कोऑर्डिनेट हमको लिखना पड़ेगा। तो लेट अस सी क्या होता है यहाँ पर।
वन थिंग इज श्योर, एक बात तो अपने को करना ही पड़ेगा, दैट इज 1 + 2। तो 1 + 2 तो मैं लिखूंगा ही, यहाँ पर भी आई विल राइट इट एज 1 + 2। उसके बाद आपको मैंने टेक्निक बताया था, और वो टेक्निक अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बोला था दिस इंटू -2, दैट मीन्स क्या होगा बच्चों, 1 × -2, 1 × -2, फिर प्लस 2 × 4, 2 × 4, 1 × -2, 2 × यहाँ से इसका पहला प्लस यहाँ से इसका पहला। आ रही बात समझ में आपको, यहाँ से इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट, यहाँ से इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट, उसके बाद यहाँ से इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट, यानी 1 × -2, 1 × -2, और यहाँ से 2 × -1, 1 × दिस, यहाँ से दिस वन 1 × -3, 1 × -3, 2 × -1, here 1 × -2, 2 × 4, again 1 × -3, 2 × -1। तो इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा, प्लस ऑफ माइनस तो माइनस होगा, 1 × 2 होगा 2, और 2 4 होगा 8 डिवाइडेड बाय 3, प्लस ऑफ माइनस माइनस, 2 × 1 is 2, 2 4 8। उसके बाद प्लस ऑफ माइनस तो होगा माइनस, 3 × 1 is 3, प्लस ऑफ प्लस इज प्लस, प्लस ऑफ माइनस इज माइनस, सो -2, प्लस ऑफ माइनस इज माइनस, 2 × 1 ये हो गया डिवाइडेड बाय 3। तो फाइनली बच्चों इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका सॉल्यूशन होगा -2 + 8 = 6, -2 + 8 is 6 divided by 3, -2 - 3 - 2 is -5 divided by 3. So if I solve it, this becomes finally equal to, इसका जो फाइनल आंसर आता है 6 divided by 3 is 2, और -5 by 3। तो बच्चों दिस इज व्हाट इज द सिंपल मेथड व्हाट आई फील। आप किस तरह से आप सेक्शन फॉर्मूले का उपयोग विदाउट राइटिंग द फॉर्मूला वैल्यूज पुट कर सकते हैं। हियर द फर्स्ट प्रॉब्लम आई हैव सॉल्व्ड बाय राइटिंग द फॉर्मूला एंड पुटिंग द वैल्यूज। सेकेंड प्रॉब्लम आई हैव सॉल्व्ड by directly using the formula by this technique.